خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ بچوں میں تعلیمی رغبت کے لیے اقرأ وربک الاکرم سورہ علق آیت 3 7 مرتبہ پڑھیں۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ قرض سے نجات کے لیے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال 7 مرتبہ پڑھیں۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ عام بیماریوں سے تحفظ کے لیے یا شافی یا لطیف یا سلام 1000 مرتبہ پڑھیں، یا جب بھی پڑھیں 7 مرتبہ پڑھیں۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ شوگر سے حفاظت کے لیے ھذا ملح اجاج سورہ فاطر آیت 12 وکل شیء عندہ بمقدار سورہ رعد آیت 8 7 مرتبہ پڑھیں۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ ہارٹ دل کی بیماریوں کے لیے وربطنا علی قلوبہم سورہ کہف آیت 14 پڑھتے ہوئے انگشت شہادت سے دل کا حصار کریں۔ وقلبہ مطمئن بالایمان سورہ نحل آیت 106 7 مرتبہ پڑھیں۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ بلڈ پریشر سے حفاظت کے لیے الذی خلقک فسواک فعدلک سورہ انفطار آیت 7 مرتبہ پڑھیں۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ اولاد نہ ہو تو یہ پڑھیں ربی حبلی من الصالحین سورہ صافات آیت 100 اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت سورہ ہود آیت 73 اہل البیت پڑھنے کے بعد انشاءاللہ بھی ضرور پڑھیں۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس
اللہ ہے خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے روزگار کے لیے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر سورہ قصص آیت 24 1000 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے 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 بے چینی اور گھبراہٹ سے تحفظ کے لیے لا تحزن ان اللہ معنا سورہ توبہ آیت 40 وقلبہ مطمئن بالایمان سورہ نحل آیت 106 7 مرتبہ پڑھیں۔ خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے 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 کینسر اور مہلک امراض کے لیے یا شافی یا لطیف یا سلام 1000 مرتبہ پڑھیں یا جب بھی پڑھیں 7 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا الحدیث دعا پڑھتے ہوئے اپنے لعاب سے پاک مٹی کو مس کر کے متاثرہ حصے پر پھیرتے رہیں۔ یہ عمل 7 مرتبہ کریں۔ خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے 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 رشتے جڑنے کے لیے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر سورہ قصص آیت 24 یا فتاح 1000 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے آپ کی صحت ہماری ذمہ داری، ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت، ماہرین کی ٹیم ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ، خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں، ہر لمحہ آپ کے ساتھ، آپ کے لیے، آپ کے بجٹ میں۔ اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، کنچن باغ اور شالی بنڈا، حیدرآباد۔ یہ جموں کشمیر اور لداخ ہے، بہت سا یہاں ایک جیسا ہے اور بہت کچھ الگ الگ۔ قدرت کا سجایا ہوا ایک خوبصورت خطہ، جہاں بہار تو ہے مگر زندگی ہے ایک پت جھڑ۔ شاخوں پہ پھول کھلتے ہیں خوب یہاں، کھل کے اکثر مرجھا جاتے ہیں مگر۔ خاموش راستے یہاں کے، منزل کی تلاش کرتی گلیاں، چوراہوں سے یہاں ایوانوں تک رہتی ہے ہر پل ہماری نظر۔ دیکھیں نیوز بلیٹن جموں کشمیر اور لداخ روزانہ شام 7 بجے صرف 4 ٹی وی نیوز پر۔ السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی نیوز خبر کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں غوثیہ بانو۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں خبر کشمیر کی سرخیوں پر۔
श्रीनगर के खानियार इलाके में खूनरेज झड़प, लश्कर के 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक, 3 सिक्योरिटी एहलकार हुए जख्मी। महलूक अस्करियत पसंद मैसूमा हमले में मुलव्वस थे, आईजी कश्मीर ने कहा फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। गैर कानूनी फंडिंग मामले में SIA की कार्रवाई, श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में मारे गए छापे। पाक पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद कामयाब, इमरान खान को हुकूमत से हटा दिया गया। PTI ने कहा कप्तान बहुत जल्द आएंगे इख्तिदार में, शहबाज शरीफ वजीर आजम नामजद। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के असरात पॉलिसियों पर भी होंगे, मुजफ्फर शाह का रद्द-ए-अमल, जंग बंदी माहिदे को बरकरार रखने जाहिर की उम्मीद। बीजेपी जम्मू कश्मीर की मईशत को बर्बाद कर रही है, महबूबा मुफ्ती के बयान की कोविंदर गुप्ता ने की मजम्मत, कहा इल्जाम है बेबुनियाद। लेह के नोबरा सब डिवीजन में जेर तामीर पुल गिर पड़ा, 4 मजदूर हलाक, अनंतनाग के देलगाम में सड़क हादसा, ड्राइवर जाँ बहक। पूंछ में पुलिस ने की कार्रवाई, 2 सार्किन गिरफ्तार, मसरूखा 15 तोला सोना और नकद रकम बरामद। रामनवमी के मौके पर श्रीनगर में पंडितों ने निकाली यात्रा, वादी के दिगर हिस्सों में हिंदुओं ने मनाया त्यौहार। श्रीनगर के बिशंबर नगर खानियार में आज फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान पेश आई झड़प में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक खानियार के बिशंबर इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने मुश्तबा मुकाम का घेराव करते हुए यहां घर घर तलाशी मुहिम शुरू की थी और इस दौरान फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। शदीद तरीन फायरिंग तबादले में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महलूक अस्करियत पसंदों का ताल्लुक लश्कर से बताया गया है। झड़प में एक और अस्करियत पसंद की मौजूदगी से मुतालिक भी इत्तलात मौसूल हुई, ताहम मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है। खानियार के बिशंबर इलाके में वाक़ई जिस मकाम पर यह इनकाउंटर पेश आया, यहाँ उस मकान को शदीद नुकसान पहुंचा है और इस झड़प के बाद काफी देर तक इस इलाके में अफरा तफरी जैसी सूरत हाल भी देखी गई।
आईजी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर के खानियार इलाके में पेश आई झड़प में 2 अस्करियत पसंदों की हलाकत को सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। विजय कुमार ने कहा कि खानियार में होने वाली झड़प में 2 पाकिस्तानी अस्करियत पसंद मारे गए हैं और 3 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए। आईजी कश्मीर ने कहा कि मारे गए दोनों अस्करियत पसंद पाकिस्तानी थे। उन्होंने महलूक अस्करियत पसंदों की शनाख्त आदिल भाई और मुबशर भाई से की है। उन्होंने कहा कि आदिल भाई सेंट्रल कश्मीर में लश्कर तैयबा का आला कमांडर था और उसकी हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आईजी कश्मीर ने कहा कि श्रीनगर मैसोमा में सीआरपीएफ पर हालिया दिनों हुए हमले में महलूक अस्करियत पसंद मुलव्वस थे। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर के मुकाम से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। आईजी कश्मीर ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस मकान में अस्करियत पसंद मुकीम थे उसको बहुत जल्द मोहर बंद कर दिया जाएगा। अप्रैल को श्रीनगर में सीआरपीएफ को अटैक किया था 2 पाकिस्तानी, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, 1 जख्मी हो गए थे। दोनों पाकिस्तानी को हम लोग उसी दिन से ट्रैक कर रहे थे और इसको पिन पॉइंट करके ऑपरेशन लॉन्च किया, सीआरपी पुलिस ने लॉन्च किया और श्रीनगर पुलिस इसको ट्रैक कर रहा था। शुरू से ही दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे थे। ये पुलिस और सीआरपीएफ के लिए बहुत कामयाब दिन है। अब मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे इनोसेंट, चाहे वो पुलिस वाले हो, सिविलियन हो या कोई जर्नलिस्ट हो, किसी पर कोई अटैक करता है, कोई टेररिस्ट चाहे पाकिस्तानी हो कि लोकल टेररिस्ट हो, उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। दोनों पाकिस्तानी थे क्या? दोनों पाकिस्तानी है। श्रीनगर में इस तरह का अटैक होना ये अपने आप में चैलेंज है। हाँ, इसमें हमारे 2 पुलिस के, 1 सीआरपीएफ जवान गिरने में घायल हुए हैं। दोनों स्टेबल है, दोनों हॉस्पिटल में है। सर, जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिसेंटली कहा है कि इन लोगों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस घर में भी प्रॉपर्टी को हम सीज करेंगे। बिल्कुल बहुत सारे क्लीन होगा। रिसेंटली मैं जैसा कहा कि 4 तारीख को जो श्रीनगर में अटैक हुआ था सीआरपीएफ के नाका पार्टी पर, जिसमें 1 जवान शहीद हो गए थे, 1 जख्मी हुआ था, दोनों मारा गया। दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट लश्कर तैयबा से बिलोंग करते हैं। सर, आर्मी ने एक लेटेस्ट डेटा शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मिलिट्री नंबर जो है डिक्लाइन हो रहा है। नहीं, मैंने किया था। पुलिस डाटा पुलिस मेंटेन करती है, ये मॉनिटर करती है कि आर्मी का जो ये नहीं है, पुलिस मेंटेन करती है। बहुत डिक्लाइन हो रहा था, इसमें हो रहा है और डिक्लाइन करेंगे हम सब मिलकर, आर्मी सीआरपी पुलिस मिलकर इसको हम डिक्लाइन और करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट जो होता है हर एक गली, हर एक पॉइंट पर होता है। ये लड़के हमारे जवान खड़ा रहते हैं, जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। टेररिस्ट आते हैं छिपा के, पिस्टल छिपा के आते हैं, कंसील करके अटैक करना उसकी इजी है, लेकिन हम लोग भी उसको मुंह तो जवाब दे रहे हैं, देते रहेंगे आगे भी। माना जाता है घायल हो गए, 3 जवान शहीद घायल हुए, घायल हुए। 2 जवान और जम्मू कश्मीर 2 पुलिस का, 1 सीआरपीएफ के जवान ग्रेनेड शॉट में जख्मी हुए। दोनों स्टेबल है, मैंने पहले कर चुका है हॉस्पिटल में। वाज़ेह रहे कि माह रमज़ान में भी वादी कश्मीर में झड़पों और सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। ताहम श्रीनगर में पेश आने वाली ताज़ा झड़प के बाद आज श्रीनगर के खानियार समेत दीगर इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त देखे गए। फोर्सेस की भारी तादाद को श्रीनगर के हसास इलाकों में तैनात देखा गया है। हिमाचल अंदर है, हिमाचल अंदर उस हिमाचल अंदर तो ऐसा ख्याल
श्री नगर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज तहकीकाती एजेंसी SIA ने छापे मारे थे। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी फंडिंग मामले में श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में ये छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी गई। बताया गया है कि अलहदगी और अस्करियत पसंदी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तलात की बुनियादों पर SIA की जानिब से छापे मारे गए। ख्याल रहे कि जारिया वर्ष माह फरवरी में SIA ने जनूबी और वस्ती कश्मीर में छापों के दौरान मुबैना तौर पर जैश से वाबस्ता OGWs को गिरफ्तार किया था। बीजेपी लीडर वो साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर कोविंदर गुप्ता ने PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती के कश्मीर और बीजेपी से मुतालिक दिए गए बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कोविंदर गुप्ता ने दावा किया कि दफा 370 के खात्मे के बाद से कश्मीर में तरक्की के काम हुए हैं और यहाँ की मईशत बेहतर हुई है। गुज़िश्ता रोज महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की मुआशी तबाही के लिए बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया था। महबूबा मुफ्ती का ये कहना कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को डिस्ट्रॉय कर रही है, गलत इल्जाम। कश्मीर के लोग भी जानते हैं किस प्रकार से बजट जो है वो बढ़ रहा है और केंद्र सरकार द्वारा उसको लगभग दोगुना कर दिया गया है। और इसके साथ ही जिस प्रकार से गवर्नमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है, जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में इंडस्ट्री, यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर, IT सेक्टर, यहाँ पर बहुत से अफसर आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी पर ऐसे बात करना कि वो चुपचाप करके देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के कारण से ही तो आज धारा 370 खत्म करके गवर्नमेंट का एक नया रास्ता खुला है। शायद विपक्षी लोग जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं भ्रष्टाचार की, पाकिस्तान प्रस्ती की, उनका इस प्रकार से बातें करना स्वाभाविक। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 174 वोटों से कामयाब हो गई। इमरान खान अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहे और एक शदीद तरीन सियासी व आईनी टकराव के बाद गुज़िश्ता शब के आखिरी लम्हात पोजीशन की पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की गई और अपोजिशन ने वोटिंग से क़ब्ल कौमी असम्बली के स्पीकर असद खैसर ने इस्तीफा दिया और उन्होंने ऐवान की कार्रवाई ऐवान के सरबराह अयाज सादिक के सुपुर्द की। अयाज सादिक ने स्पीकर की नशिस्त को संभालते ही तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग का ऐलान किया। वाज़िह है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट की जुमला 343 नशिस्तें हैं, जिसमें हुकूमत साजी के लिए 172 नशिस्तें दरकार होती हैं, जबकि अपोजिशन जमातों ने 174 नशिस्तें साबित करते हुए इख्तिदार पर कब्जा जमा लिया और इमरान खान हुकूमत पार्लियामेंट में अक़लियत में आते हुए इख्तिदार से बेदखल हो गई। मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ ने आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मुंतखब किए जाएंगे। वाज़िह है कि अदम एतमाद की तहरीक को बैरूनी साजिश करार देते हुए डिप्टी स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देते हुए तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई। और इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में डालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा अरसा अपने लीडर इमरान खान के साथ गुजारा। 26 साल से मैं उसके साथ रहा। मैं स्टूडेंट लाइफ से, जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और उस वक्त जब मैं शौकत खानम कैंपेन चली थी मैं उस वक्त उसके साथ था।
میں چونکہ اس وقت ایک قومی فریضہ ہے اور سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس کو منوان تسلیم کرتے ہوئے اس کی جو پروسیجر ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جو پینل آف چیئرمین ہے آیا صادق صاحب وہ باقی اجلاس وہ چلائے گا. Kindly commence voting, please. Have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان حیرت ہے حیرت ہے پی ڈی ایم بے غیرت ہے حیرت ہے پی ڈی ایم بے غیرت. عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد قومی اسمبلی میں الوداعی خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ کربلا کے میدان میں اگرچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس عددی لحاظ سے تعداد کم تھی، تاہم انہوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہمیں باطل کے خلاف استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کا درس دیا. ان کا یہ بھی کہنا رہا کہ حضرت امام حسین نے ہمیں نہ جھکنے کا درس دیا اور عمران خان نے بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے حکومت قربان کر دی، لیکن امریکی غلامی قبول نہیں کی. علی محمد خان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے مسلم امہ کا بلاک بنانے کی بات کی، وہ ان کا گناہ تھا. ان کا گناہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم ہونے کے ناطے مسلم امہ کی بات کی، ریاست مدینہ کی بات کی، سامراج کے سامنے بالکل نہیں کا نعرہ دیا. علی محمد خان نے کہا کہ تاریخ ایک سوال مولانا فضل الرحمان کے لیے چھوڑے جا رہی ہے کہ مولانا عمران خان کو امریکی اور یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے، لیکن یہ کیسا ایجنٹ تھا جسے ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. علی محمد خان نے کہا کہ روس صرف بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے. اپوزیشن کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیر ملکی عناصر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک مرتبہ پھر اقتدار میں واپس آئیں گے اور اس بار عوام کے ووٹوں سے 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آئیں گے. علی محمد خان کا کہنا رہا کہ عارضی ناکامی کو شکست نہیں کہا جا سکتا. لیکن جناب چیئرمین صاحب، ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے، ایبٹ آباد آپریشن ہوا، اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. میرے چیئرمین صاحب، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں، امریکہ سے معافی کے خواستگار نہیں. لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج، ہم گریس سے برداشت کریں گے. لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیئرمین صاحب، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے. غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. دوبارہ سناؤ، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. جناب چیئرمین صاحب، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا، جھکا نہیں، بکا نہیں، ڈرا نہیں، آخری گیند تک کھڑا رہا. اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کرو گے؟ اس کا ایک سپاہی آپ کے بیچ میں کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. تو آخر میں جناب چیئرمین صاحب، آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب، میری دعا ہے میرا ملک، میرا پاکستان آگے بڑھتا رہے.
मेरी दुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान को मजबूत करते रहे, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, 2/3 अक्सरियत से होगा, और इंशाअल्लाह इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मेरे करोड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और वोटर्स और सपोर्टर्स को आज की ये डिफेंस, आज का ये खड़ा होना और आपका आज की रेजिस्टेंस मुबारक हो। आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्राज्य के सामने खड़े हैं, जो अमेरिका के सामने खड़े हैं, जो यहूद और हदूस के सामने खड़े हैं। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के असरात खित्ते पर जरूर पड़ेंगे। मुजफ्फर शाह ने उम्मीद जाहिर की कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनने का मौका दिया जाएगा और इस वक्त सरहदात पर जिस जंग बंदी की पासदारी की जा रही है उसको बरकरार रखा जाएगा। नेबरहुड में कहीं पर भी ऐसी जब चेंजेस होती हैं, और आज खुसूसन पाकिस्तान में जो ये इस वक्त चेंज हुई है, इसका तो डेफिनेटली इफेक्ट तो पॉलिसीज़ पे पड़ेगा। बिटवीन द पॉलिसी ऑफ जो इस वक्त चल रही है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो थी अभी, जो इमरान खान की चली गई, उसके बाद जो अभी दूसरा डिस्पेंसेशन आएगा, वो कोलेशन सरकार होगी, उनका अपना एक सोच होगा। और चूंकि इस वक्त थोड़ा इंस्टेबिलिटी है अक्रॉस द कंट्री, उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और ये मुझे उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक दे विल वो पूरी तरह से, जिस तरह अभी तक हमारे बॉर्डर्स पे अच्छा खासा पीस है आफ्टर द जो ये पीस एग्रीमेंट हुआ था इनके बॉर्डर्स के अपने DGMS लेवल पे, सो उसको कायम रहे। आई होप इट स्टेज, अदरवाइज जो हालात वहाँ के हैं, there are very grave concern to all, including the neighboring country that is ours here. इसमें कोई दो राय नहीं है। तो peace process बिल्कुल continue रहना चाहिए, and we hope that there is stability in the country, in Pakistan. Pakistan is also not a good idea for this country, not a good idea for Jammu and Kashmir, absolutely not. वो उनका internal issue है, वहाँ कौन बने कौन नहीं बने, मैं इतना ही कहूँगा, चूँकि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स हमारा ये नेबरहुड में ऑलवेज इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, और खुसूसन जब आप कश्मीर का मामला इसमें सामने आता है तो डेफिनेटली इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। एंड हम दुआ करते हैं कि अमन बरकरार रहे, बॉर्डर्स पे अमन रहे, और जो नई सरकार उनकी अभी बन रही है कितने दिन रहेगी, कैसे रहेगा, उनको चूँकि इलेक्शंस होने वाले हैं फिर भी। So unstable situation is never a welcome thing here. आज जम्मू कश्मीर में पंडितों ने रामनवमी त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया। श्रीनगर में रामनवमी के मौके पर पंडितों ने यात्रा निकाली, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चों ने हिस्सा लिया। इधर दूसरी जानिब हंदवाड़ा की भद्रकाली मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ भी की गई। माता भद्रकाली के 2 दिन होते हैं। एक आता है आखिरी जनवरी को, मार्च अप्रैल में, दूसरा आता है अक्टूबर में। ये मेला यहाँ बहुत ज़्यादा लगता था, लोग 3 दिन 4 दिन यहाँ रहते थे 90 से पहले। आज तो हम मेरे ख्याल से एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन करते हैं। तो फिर भी मतलब क्या कहें, उसका जो 90 से पहले होता था उसका हम ये कहूँगा कि 5% या 10% आज होगा, जो उस टाइम रश हुआ करता था। क्यों ऐसा हुआ आज? क्यों का जवाब तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्यों वो सबको पता है क्या है क्या नहीं है। से हम कहाँ थे, कहाँ हैं। इस टाइम हम मेरे ख्याल से 400 किलोमीटर चल के नहीं आया। पहले 90 से पहले मैं सिर्फ 3 किलोमीटर चल के यहाँ आता था, आज मैं 400 किलोमीटर चल के। इस टाइम एक बंदा हमारे साथ है, वो स्टेट से आया है, अमेरिका से आया हुआ है,
और यहाँ हमारे साथ इस टाइम यहाँ है, वरना वो शायद श्रीनगर का रहने वाला था, 70 किलोमीटर उसको चलना था, यहाँ पहुँच जाता। मेरे ख्याल से कुछ 200-300 लोग होंगे यहाँ की जो लोकल बरादरी है उसने भी आपकी अगर हम 90s से पहले की बात करें तो बहुत कम है, बहुत कम है। उस टाइम अगर हम 90 से पहले की बात करते हैं, उस टाइम यहाँ मीट वाला होता था, टांगे वाला होता था, राशन वाला होता था, और भी कोई चीज हो वो वाला होता था। मतलब काफी ज्यादा लोग मुस्लिम्स होते थे। अगर हम ये कहेंगे कि 100 लोग हिंदू होते थे और 20 लोग 25। वदी कश्मीर में दर्जे हरारत मुसलसिल मामूल से ज्यादा दर्ज होने के दरमियान महकमा मौसमियात ने हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश की पेश क़यासी की है। मुताल्लिका महकमे के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी में 13 से 14 और 19 अप्रैल को बारिश मुतवक्के है और इसके बाद मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है और इस दौरान शबाना दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज होने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। लेह के नोबरा सब डिवीजन में जेर तामीर पुल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 4 मजदूर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब तेज हवाएं चलने के दौरान पुल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसमें दब जाने के नतीजे में 4 मजदूर हलाक हो गए। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने रेस्क्यू ऑपरेशन की करीब से निगरानी की और इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर के जुनूबी जिला अनंतनाग के देलगाम इलाके में ऑल्टो गाड़ी को हादसा पेश आया है और इसके नतीजे में इसमें सवार ड्राइवर की मौके ही पर मौत वाक़ हो गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि देलगाम अनंतनाग में इतवार की दोपहर को एक ऑल्टो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर उलट गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर की मौत वाक़ हो गई। पूंछ में पुलिस ने 2 सार्खिन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मसरूखा 15 तोला सोना और नकद रकम बरामद की है। SSP रोहित बिस्कोत्रा ने इस हवाले से मजीद तफसीलात बताई हैं। कंप्लेंट किया था पुलिस स्टेशन पूंछ में कि वो घर में थे और उनके घर में कोई चोरी हुआ है, जिसमें सोने के जेवरात और कुछ कैश वगैरह चोरी हुआ है। उसी असना के दौरान 1-2 कंप्लेंट हुई जिसमें किसी का कुछ और कैश का चोरी के बारे में कंप्लेंट मिली। कंप्लेंट मिलने के बाद पूंछ पुलिस तुरंत हरकत में आई और उसमें DSP हेडक्वार्टर और SHO पूंछ और हमारी डिफरेंट एजेंसीज, जिसमें हमारे चाहे कोई स्पेशल ब्रांच है, सब लोग एक्टिवेट हुए और पूरे पूंछ स्टोन को स्कैन किया गया कि ये चोरी किसने करा है और इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और अपने सोर्सेज को एक्टिवेट किया गया। उसी असना के दौरान जब हमने ये सारी अपनी तफ्तीश वगैरह की, इंटेलिजेंस जनरेट किया, टेक्निकल एविडेंस लिए, तो कुछ एक मशकूक मोहम्मद जरायत हमारी नज़रों में आया, जिसको फ़ौरन कार्रवाई करते हुए किसी जगह से गिरफ्तार किया गया। और जब उसको लाया गया उसके पता चला कि उसका एक वो साथी है मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने मिलकर ये देवेंद्र शर्मा जी घर में चोरी की थी, जिसमें तकरीबन 15 से 16 तोले के करीब सोना है जो मिल चुका है और कुछ कैश था जो भी मिला हुआ है। इसी के साथ ही कुछ और चोरियाँ भी हैं जो और इसमें तफ्तीश रवा है और हमें उम्मीद है कि इस चोरी के साथ
उसको देरीना में जो पास हिस्ट्री में 1-2 चोरी हुआ होगा वो भी रिकवर होगा। बडगाम के मागाम इलाके को असेंबली हलका करार देने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुकामी लोगों की देरीना मांग की तकमील करें। फ्रंट के सरबराह आका सैयद अब्बास रिजवी ने वक्त की सरकार पर इल्जाम आयद किया कि इस हलके को कम्युनिटी की बुनियादों पर नजरअंदाज करते हुए उसके हलके की हैसियत को खत्म किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिलिमिटेशन के हवाले से पिछले साल से एक एक्सरसाइज हो रही है, और जब पहले डिलिमिटेशन का कमीशन यहाँ आया हुआ था तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वहाँ भरपूर नुमाइंदगी की गई, लेकिन इस मागाम को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। तो मागाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारा हक था वो कब छीना गया है? 1967 में। 1952 से लेके 1967 तक ये बाज़ाब्ता एक असेंबली हल्का रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, जबकि 1952 से लेके 1957 सैयद मुबारक शाह जो बारामूला के रहने वाले थे वो यहाँ के MLA रहे, और उसके बाद 1957 से लेके 1962 यहाँ मरहूम गुलाम मोहम्मद कानहामी वो यहाँ के MLA रहे। 1962 से लेके 1967 तक सईद अब्बास जो नौलरी पटन के रहने वाले वो MLA रहे हैं, और 1967 में उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी सेंटर में, और उस दौर में इस असेंबली हलके को ख़त्म किया गया है और हमारे हक को छीन लिया गया है। मैं आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि इस मागाम कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर बहाल किया जाए। अगरचे इस वक्त डिलिमिटेशन में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसियों को वो बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि अगर वो और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उस तारीख जो एक रकम कर गई है 1952 में, तो उस तारीख को वो मसक न करें। में जो हमारी कम्युनिटी के जो हुकूक आज तक मिलने चाहे वो हुकूक नहीं मिले, हमारे हुकूक को पामाल किया गया। असेंबली हलका जो रहा है और वह फिर बहाल किया जाए और मागाम को बहैसियत एक असेंबली हलका करार दिया जाए। पूंछ में मुकामी आलिम दीन ने कहा कि माह रमजान में बिजली और पानी की सरबराही का मजमूई तौर पर कोई मसला नहीं रहा है। ताहम उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो पानी और बिजली के इसराफ से बचे, इसलिए कि दीन इस्लाम में इसराफ से मना किया गया है। रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि माह रमज़ान के रोज़े बड़े अच्छे अंदाज के अंदर जो है गुजर रहे हैं। इसका माह मुक़द्दस का पहला आशरा जो रहमत वाला है वो 2 दिन के बाद इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। इस ताल्लुक़ से अभी तक तो जो हमने खुद देखा है ख़ासकर शहर में अतराफ़ में, तो किसी तरह की परेशानी सामने नहीं आई, कोई शिकायत भी नहीं आई कि शहर में लाइट ना हो या पानी की कोई ऐसी बात। मुमकिन है चूँकि जुमे के दिन जो है अक्सर लोग काफ़ी होते हैं, तो बाज़ मकामात पर जो है पानी की दिक्कत हो सकती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हमारा हक़ है, हमें ये मिलना चाहिए, पानी भी टाइम पर, बिजली टाइम पर। लेकिन एक बात मैं गुजारिश करूँगा अपने जितने भी देखने वाले हैं, पब्लिक से, आवाम से हमारी गुजारिश है कि हम भी पानी जब इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि पानी को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें अगर शरीयत बात से देखेंगे, हमें ये हुक्म है मुसलमानों को कि जब आप वज़ू करें तो वज़ू के टाइम भी पानी आपने जो है कम इस्तेमाल करना है, यानी कि फजूल पानी नहीं बहाना है, बल्कि मसा करना है तो पहले आपको नल बंद करना है फिर पानी इस्तेमाल करना है। ऐसे ही बिजली भी हमने देखा अगर 2 बल्ब की ज़रूरत है वहाँ पर जो 10 हम जला देते हैं और रात भर जलते रहते हैं, तो
ہم اپنی عوام سے گزارش کریں گے کہ کسی بھی اعتبار سے ہمیں اسراف میں یعنی فضول پانی بہانا یا فضول بجلی جو ہے خرچ کرنا یہ جو ہے گناہ کے اندر ہمیں ڈال دیتا ہے. تو ہم پہلی تو یہ گزارش کریں ضلع انتظامیہ سے کہ وہ کام اچھا کر رہے ہیں, مزید جو ہے سہولیات کو فراہم کرنا چاہیے پبلک کا جو معاملہ ہے, لیکن پبلک سے ہماری گزارش ہے کہ آپ مکمل طور پر احتیاط کریں, کسی بھی جگہ جو ہے فضول پانی, فضول بجلی یا ایسی تمام چیزیں استعمال نہ کریں جس سے کہ کسی اور کا حق نقصان ہوتا ہو. ڈی ڈی سی کاکاپورہ منہاج لطیف نے کہا کہ علاقے میں عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ضلع میں کئی ایک ترقی کے کام ہوئے ہیں اور آئندہ بھی بہتر اقدامات کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. ڈی ڈی سی کاکاپورہ پلوامہ سے بول رہی ہوں. ڈیولپمنٹ بہت ہوئی ہمارے پلوامہ میں, آپ کو جو پتہ ہی ہے ریسنٹلی ہمارا پلوامہ گڈ گورننس میں نمبر 1 پہ آیا. تو ڈیولپمنٹ گراؤنڈ لیول پہ بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آگے جا کے بھی ہوگی. جو یہ 3 ٹائر سسٹم تھا یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ایک ہمارے گورنمنٹ نے کہ جو یہ پہلی بار یہاں پہ آیا کیونکہ کامن مین کے پاس پیسہ آیا اور وہی یہ یوٹیلائز کر رہے ہیں, چاہے وہ سڑک ہو چاہے وہ. میں نے بھی بہت ساری ڈیولپمنٹ کی یہاں سے جب سے میں بنی ہوں. میں نے ہیلتھ سیکٹر کے لیے 10 لاکھ دیے, پی ایچ ڈی ڈپارٹمنٹ کے لیے 10 لاکھ دیے اور R&B ڈپارٹمنٹ کے لیے 10 لاکھ دیے. میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ وکاس ہو کیونکہ ہمارا جو نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وشواس اور سب کا وکاس ہو, تو وہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ آگے جا کے بھی ہوگا. رام بن کی تحصیل پوگل پرستان پنچایت بنگارہ میں ایک گہرے چشمے پر مضبوط پل تعمیر نہ کیے جانے کے نتیجے میں عوام اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر راستہ طے کرتے ہیں. مقامی لوگوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہاں ایک پل تعمیر کرے تاکہ لوگوں کو نہ صرف آمد رفت کی سہولت حاصل ہو بلکہ وہ کسی بھی حادثے سے محفوظ رہ سکے. جناب میں گلزار احمد, گاؤں میرا ہے پنچایت بنگارہ. پریشانی ہے سر, صدیوں سے ہمارے باپ دادے پردادے اسی راستے جا رہے ہیں. تو یہاں ہمارا پل جو ہے یہ بالکل نہیں بنا. اس سے پہلے بھی بلاک میں بھی اپلیکیشنیں دی تھی تو وہ بھی اس میں آئے دیکھا تو پھر بھی نہیں بنائے. تو یہاں کہیں پرانے زمانے میں کہیں 1-2 جانیں بھی گئی ہے پانی میں گر کے, تو ان کی بھی سنوائی کچھ نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی پل نہیں بنا. اور بچے جب سکول آتے جی ہمارے بچے سکول آتے ہیں بارشوں میں, ان کا دن جو ہے سکول کا ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دریا جو ہے اس میں کراس کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ پل سر یہاں ہے ہی نہیں, کہیں پہ پل ہمارا یہاں نہیں ہے. تو اس کے اس سائڈ بھی آ جاتا ہے پانی, اس سائڈ بھی. تو بچے بھی مجبور ہے. پھر اگر ہمیں راشن پانی جو بھی ہے وہ اخرال بازار ہے ہمارا, باقی کوئی بازار نہیں ہے. تو اس وقت بھی ہمیں اگر زیادہ بارشیں ہوتی ہے, یہ دریا زیادہ چڑھتا ہے تو ہمیں 5-5 6-6 دن بغیر اس راشن کے رہنا پڑتا ہے. کسی جناب ہمارا آ گیا نرتھیال جو ہے تقریباً 5-6 ہزار گھر کے متاثر ہے. اس کے بعد آ گیا بنگارہ جو ہے تقریباً 15-16-17 ہزار گھر پر مشتمل ہے. یہ اتنا پورا بنگارہ جو پنچایت ہے پوری بنگارہ اور نرتھیال جو ہے اسی پہ ڈیپینڈ ہے. یہاں پہ ہی ہے, مین راستہ یہی ہے. کچھ نے پھر انہوں نے کیا کیا, ووٹ کی جو تھی ووٹ تو ہم نے ڈالا ہے تو کام ہوا نہیں تھا. ووٹ میں کیا کریں گے ہم, ووٹ سے تو ووٹ تو ڈالتے ہیں, ہم بولتے ہیں کہ ہم کریں گے اس کا بن جائے گا, بعد میں نہیں بنتا ہے تو پھر ہمارا غریب کی سنوائی ہوتی نہیں ہے.
मुबैना तौर पर 2 बेटों की जानिब से अपने वालिद के कत्ल के वाक़े ने श्रीनगर के इलाही बाग इलाके में गम व गुस्से की लहर पैदा करती है। इलाही बाग में मुतवफ़ी ज़ईफ़ शख्स के पड़ोसियों ने अपनी हैरत और तकलीफ का इजहार करते हुए मामले की जामा तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए ख़ातियों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। बचो मोर मोल पोंसवी मोट बे लिहाजा गोस हालात गसन दो पो दो जेरनी अम गो समाजी खराब सोरे महलस अमिस मालिकस पान असल वथुन शरीफ अहन दम गोच मकलम लिहाजा कर आयन सपन यह कह वो मे रात क्यों गब यह वन कल आय मस्जिद पे नमाज पढ़ इकवटे शाम पे आमुत तरावी पढ़ पो घर और द्राव न वापस कहो वो अमिस आव फोन तो तवे हसा न्यू कम तान नाद दिख बे 60,000 चंदस चीज अफसोसनाक वाक़ा क्या शुर मोर मोल माजुन रवाय ना मालिस खराब शुरन सत रलित तम कोर यह वाक़ा पेश पता आव पुलिस तमो कोर CC कैमरा पे रिकवर सोरे कपर क्या गसान मशीद में पत सिंदिस कमरस तो सिंदिस किचनस खरी 8 फुट फर्क 8 फुटन मज बूज न यम शख्सन कि आलो है या मोर क्या कह कोर ये महल वाले पे यूता लाश ब्रोट कन वोस और तम ब्रोट पे बूज है मोल क्या मिसिंग कत मिसिंग तुम छोड़वन ना कहें पाने तुझमिस लाश त्रुक 2 दोहन कमरन में सवित 2 दोहन मज गर थमुत बेडरूमस महल वाले ये बूज पे द्राय मशीद मज सामान सोरे कफन पफन सोरे कोर तिवुई आय अमिस पे मोज आय अम सो पात बिलाल कॉलोनी मज बसान ये सो आय योर सी आय तमिस वन तमिस वोन कमिस बेमार क्या अंदर वुच तम हालत मयत क्या सो बिचार वदान सो द्राय मयत कड़स यपर फातिहा करित तो सो द्राय मयत द्राव यपर तो सो द्राय यपर यह गो हाल माज हुंद पे गई इंसान गसन जिंदा फस दिन ये कुन जाए कोचन पोचन मज चौरायस मज अजीब कथ मारुन पत 2 दोहन थवन गर सन मोल तम 3 इन्वॉल्व जनान नेचिव ज गवर्नमेंटस करान गुजारिश इन गि इबरतनाक सजा युन दिन क्या आयंद गह इबरत रोजन सारे हंद खतर तम गसन यल इन त्रावन कह असल रोल रूद पुलिस सुंद रूद असल अत मज बिल्कुल आ जनाब तमो दस्ती कोर यह केस हैंडल 2 दोहन मज कोर तमो यह सॉल्व यह केस। गांदरबल के वसान बटालियन ने आयुष के इश्तराक से यहाँ एक मुफ्ती मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया। मेडिकल कैंप से बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने रुजू किया और जिनकी तशखीस के बाद उनमें अद्वियात तकसीम की गई। जो आर्मी ने कैंप रखे है यहाँ पर, इसकी बड़ी सहूलत है यहाँ पर गरीब आदमी के लिए। यहाँ पर ये मुफ्त दवाई देती हैं, काम शुक्रगुजार है और डॉक्टर भी बहुत अच्छा तरीके से देखते हैं। ऐसी कैंप लगनी चाहिए, ऐसी लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत गरीब आ रही है और फौज की तरफ से ये दवाई जो मिल रही है, डॉक्टर भी अच्छे तरीके से देख रहे हैं, इसकी बहुत अच्छा तरीका। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। श्रीनगर के खानियार इलाके में खूनरेज झड़प, लश्कर के 2 अस्करियत पसंद जान बहा, 3 सिक्योरिटी अहलकार हुए जख्मी। महलूक अस्करियत पसंद मैसूमा हमले में मुलव्वस थे, IG कश्मीर ने कहा फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। गैर कानूनी फंडिंग मामले में SIA की कार्रवाई, श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में मारे गए छापे।
पाक पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद कामयाब, इमरान खान को हुकूमत से हटा दिया गया। पीटीआई ने कहा कप्तान बहुत जल्द आएंगे इख्तिदार में। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नामज़द। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के असरात पॉलिसियों पर भी होंगे। मुज़फ्फर शाह का रद्द-ए-अमल, जंग बंदी मुआहदे को बरकरार रखने ज़ाहिर की उम्मीद। बीजेपी जम्मू कश्मीर की मईशत को बर्बाद कर रही है। महबूबा मुफ्ती के बयान की कोविंदर गुप्ता ने की मजम्मत, कहा इल्जाम है बेबुनियाद। लेह के नोबरा सब डिवीजन में जेर तामीर पुल गिर पड़ा, 4 मजदूर हलाक। अनंतनाग के दिलगाम में सड़क हादसा, ड्राइवर जाँ बहक। पूंछ में पुलिस ने की कार्रवाई, 2 सार्किन गिरफ्तार। मसरूखा 15 तोला सोना और नकद रकम बरामद। रामनवमी के मौके पर श्रीनगर में पंडितों ने निकाली यात्रा। वादी के दिगर हिस्सों में हिंदुओं ने मनाया त्यौहार। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।